Hello learners, welcome back to my channel Shraddha's Physics. In this part we will see the relativistic Doppler's effect, and that after from this relation, that is the relativistic Doppler's effect, we will establish a relation for the non-relativistic Doppler's effect. So let us begin our topic, that is the relativistic Doppler's effect. So let us consider a source of light to be placed at the origin in the S prime frame. So एठी हमरो this one is your S prime frame. तो S prime frame रे हमरो कोन अछि ना एठी गोटे light source अछि at the origin. Okay, and this light wave it travels from the O prime in the S prime frame and it makes an angle theta with the x axis. तो एठी हमें देखि परथवा कोन ना ए जो हमर light source टा जाउ एठी हमर जो light टा जाउची तो ये कोन करछि ना x axis सहित theta angle बनि कि अछि. If the amplitude of the wave is assumed to be unity, एबे हमें कौन करछन ना amplitude टाको unity means 1 consider करछन. तो normally हमें जतले गोटे wave equation लिखुतले y equal to हमें केमते लिखंदी हमें तले लिखुतले wave equation होउची कोन ना y equal to cos kx minus omega t. हमें एमती लिखंदी k टा होउची wave vector, x टा होउची हमर displacement and omega you know the angular frequency and t is the time period. So here you know wave vector k can be written as 2 pi by lambda. Lambda is the wavelength of the wave. एठी जदि हमें k को जदि हमें लिखुचनी cos k जगह we can write this is just 2 pi by lambda and here it is x minus again omega को हमें केमते लिखुतली ना angular frequency equal to 2 pi into nu. Nu is the frequency. So एठी हमें एठी कोन लिखबा ना 2 pi nu into t. एठी जदि हमें 2 pi कॉमन नै जबा so this will be equal to cos 2 pi whole into x by lambda minus nu into t. आमे एमती लिखि परियो. तो एठी अबे आमे कोन करछनी ना हमर सोर्स रु एठी जो ओरिजिन ने थिला S प्राइम फ्रेम रे लाइट जेतले ट्रैवल करछि आमे एठी कंसीडर करछ आमे नॉर्मली कोन a cos kx minus omega t लिखंदी. तो एठी जेहेतु हमर एम्पलीट्यूड टा 1 अछि तो आमे सिंपली cos kx minus omega t or that can be written like this. तो एबे आमे एमती लिखुछनी. So now you can see here the zeta, एटा होची गोटे सिंबल zeta, any wave function or you may write like psi. ठीक अछि. तो एटी zeta equal to cos 2 pi ए जो हमरो x टा अछि डिस्प्लेसमेंट. ओके, जो डिस्प्लेसमेंट अछि x एठी हमरो वेव टा जतले जाउची सम एंगल थीटा रे जाउची. तो एबे हमें कोन करछन ना x टा को we can write this is your x cos theta plus y sin theta ए भली हमें ताको लिखि परिबा. ठीक अछि. बिकॉज ऑफ जेहेतु सी एटी थीटा एंगल बनेकी अछि तो तार कंपोनेंट आमे लिखिबा x cos थीटा प्लस y sin थीटा. बाकी जहाँ जेमती थिला सब सेम रहइबो. सो यू कैन सी हियर दिस विल बी cos 2 pi x जगह रे हमर x प्राइम cos थीटा प्राइम प्लस y प्राइम sin थीटा प्राइम डिवाइडेड बाय लैम्बडा प्राइम माइनस न्यू प्राइम इनटू t प्राइम. प्राइम एथि पई दिए छी बिकॉज वी आर कंसीडरिंग इट इन द s प्राइम फ्रेम. ओके, एंड नाउ the light speed c टाको हमें कौन लिख पारे ना nu prime into lambda prime since we are considering it in the s prime frame where nu prime and lambda prime is the frequency and the wavelength of the wave in the s prime frame. Similarly हमें जदि s prime रे लिखिबा s prime रे हमर कोन बा ना prime किछ रहिबोनी, prime उठी जिवो. बाकी exactly the same equation we will write. You can see here in the s prime frame we can write zeta will be equal to cos 2 pi x cos theta plus y sin theta divided by lambda minus nu t. Okay, and c will be equal to nu lambda. And now here from the Lorentz transformation equation आमे Lorentz transformation equation रो जानि छु को ना जदि any object गोटे s prime frame रे अछि with respect to the s frame रे तारो displacement और तारो position coordinate केमति चेंज होबो with respect to गोटे frame of reference रे अछि other frame of reference रे आमे जदि calculate करछु we can establish a relation. So एठी हमें लिखु चंदी x prime will be equal to s minus bt divided by root over of 1 minus b square by c square and y prime will be equal to y and t prime will be equal to t minus v by c square into x divided by root over of 1 minus v square by c square. जेहेतु हमें 2 डायमेंशनल सिस्टम एबे हमें कंसीडर करछन केवल थीटा एंगल बनै छी x एक्सिस सहित केवल हमें x और y रो देखु छनी z कोऑर्डिनेट हमें कंसीडर करिया दरकार नै 2 डायमेंशनल सिस्टम. ओके, सो नाउ दिस इक्वेशन 1 एबे जो इक्वेशन 1 थिला ता माने हमें जो जीटा प्राइम लिखुतले एठी हमें जो s प्राइम फ्रेम रे करतले दिस इज योर जीटा प्राइम. ओके, s प्राइम फ्रेम अछि तो जीटा प्राइम. ओके, सो दिस जीटा प्राइम कैन बी रिटन एज cos 2 pi रहला. ओके, तो हमर कोन थिला
ना एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा थिला मुझे लिखि दउची तो जीटा प्राइम इक्वल टू आम कौन लिखुले दैट इज इक्वल टू कॉस 2 पाई इंटू एक्स प्राइम कॉस थीटा प्लस वाई प्राइम साइन थीटा वाई प्राइम साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय लैम्डा जेहेतु थिला दिस डिवाइडेड बाय लैम्डा अलग अलग कर लिखिदेली एकाथरे ये प्लसटा मझे रहा एगेन माइनस न्यू प्राइम टी प्राइम एति आमर थिला रिलेशनटा तो मुझे कौन करुँच ना लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ये पुट करुँच सो दिस विल बी इक्वल टू कॉस 2 पाई रहा कोसाइन 2 पाई एगेन एक्स प्राइम जगह आम कौन लिखिपर मुझे भावुँ समस्त रिलेशन मन रही एक्स माइनस भिटी डिवाइडेड बाय कौन थिला 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर ओके ये हमारा लैम्डा प्राइम थिला ओके 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर रूट ओवर again this is your cos theta divided by cos theta prime and here it is theta prime divided by lambda prime okay now plus y prime ta amara kon y simply into sin theta prime divided by lambda prime minus new prime rahila t prime jagare t minus vx divided by c square whole in divided by 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर रूट ओवर तो आम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पुट करिकी इन टर्म्स ऑफ द एस फ्रेम रे कौन हम आम लिखिदे एबे आम कौन करवा ना एक्स कोऑर्डिनेट को गोटे जगह टी को सेपरेट कर दौन सो लेट अस राइट दिस इज इक्वल टू cos 2 पाई रहा ओके तो मु एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट टी कोऑर्डिनेट अलग करके देखा चाहूँगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्स अच्छी एंड एटी ऑल्सो एक्स अच्छी सो मुझे एक्स को कॉमन नहीं जी सो किए रहा cos थीटा प्राइम सो cos थीटा प्राइम रहा एंड ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गला प्लस v बाय सी स्क्वायर रहा गोटे न्यू प्राइम अच्छी आउ ये जेहेतु आम ये दुटा टर्म को आम ऐड करवा तो ये लैम्डा प्राइमटा ये आसिक ऊपर मल्टीप्लाई होता तो आई कैन राइट दिस इज योर न्यू प्राइम इंटू लैम्डा प्राइम ये टर्म रे मोर लैम्डा प्राइम गोटे मल्टीप्लाई हेले न्यू प्राइम इंटू लैम्डा प्राइम ठीक अच्छे डिवाइडेड बाय कहीं मुझे डिवाइड करदे से लैम्डा प्राइमटा कैंसल हो लैम्डा प्राइम इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर ओके 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर रूट ओवर दिस होल इंटू एक्स प्लस ये हमारा कौन रहा ना वाई बाय लैम्डा प्राइम इंटू साइन थीटा प्राइम राइट माइनस एबे जदि मु टी पाई लिखुची एठी हमर गोटे टी कंपोनेंट अछि एंड एठी गोटे टी कंपोनेंट अछि सो आई कैन राइट माइनस कॉमन नहीं जाइए सो दिस विल बी v cos थीटा प्राइम एंड एठी हमर माइनस थिला जेतु हमें कॉमन नहीं चनी तो न्यू प्राइम एंड गोटे लैम्डा प्राइम मल्टीप्लाई हबो प्लस न्यू प्राइम इंटू लैम्डा प्राइम डिवाइडेड बाय एठी हमर कोन एठी लैम्डा प्राइमटा अछि तो मल्टीप्लाई एठी हमें एथि पे करछने कहना लैम्डा प्राइम कैंसल हो आई होप समस्त बुझी पारछु डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय लैम्डा प्राइम इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर सो सब तक ब्रैकेट क्लोज अबिका है ठीक अच्छे एंड यस एटी गोटे टी भी अच्छे आमर गोटे टी अच्छी नाउ हियर यू कैन सी दिस न्यू प्राइम इंटू लैम्डा प्राइम इज नथिंग बट योर सी तो आमर गोटे सी कैंसल हो राइट नाउ वी कैन राइट हियर द फर्स्ट टर्म this is your let us write this is equal to cos 2 pi into cos theta prime plus this will be your plus v by c other term get cancelled divided by lambda prime into root over of 1 minus v square divided by c square this whole into x plus sin theta prime divided by lambda prime whole into y minus तो ये आमर सेमती कौन अच्छी ना न्यू प्राइम लैम्डा प्राइमटा सी अच्छी तो मुझे गोटे सी को कॉमन नहीं जी ये सो माइनस सी कॉमन गला टी अच्छी सो दिस टर्म विल बी v डिवाइडेड बाय सी सी कैंसल हो पार इंटू cos थीटा प्राइम प्लस 1 सी कॉमन नहीं जाइए डिवाइडेड बाय ये आमर कौन अच्छी लैम्डा प्राइम दिस इज योर लैम्डा प्राइम
root over of 1 minus v square divided by c square root over. Okay, एठी again you can see एठी c अछि एठी divided by lambda prime अछि. We can आमे जानछु कोन c equal to nu prime into lambda prime. तो मु जदि c by lambda prime लिखि थांदी तो मोर केते हितांदा nu prime हितांदा. तो तमे आगुडे स्टेप रे लिख परियो. मु एठी डायरेक्टली लिखुची c by lambda prime जगह रे एठी डायरेक्टली nu prime लिखिबी. एठी डायरेक्टली मु एठी nu prime लिखुची nu prime एठी अब lambda prime नाही. Okay, now let us write the beta value equal to v by c. Now this equation will now becomes equal to cos 2 pi, एठी हमर हला केते ना cos 2 pi into this is your cos theta prime plus v by c जगह रे मु beta लिखुची divided by this lambda prime into root over of 1 minus beta square this whole into x plus sin theta prime divided by lambda prime whole into y minus this is your beta v by c जगह में beta लिखुचंदी into cos theta prime plus 1 divided by root over of 1 minus again the v by c is your beta, so this will be beta square this whole into nu prime into t. तो ये हमें गोटे रहा कते nu prime into t the bracket close. सो आम एमती कर कारण हूँ कौन ना आम ये कौन पाइले जीटा प्राइम और जीटा आम जो पाई तो इन टर्म्स ऑफ द एस फ्रेम रे आम पाई. तो एबे जदि मु कंपेयर करी देखो जो आम एस फ्रेम रे लिखिले जीटार वैल्यू केते अछि ना cos 2 पाई x cos थीटा बाय लैम्डा प्लस y sin थीटा बाय लैम्डा माइनस न्यू टी एतिकी थिला. तो एबे आम जदि कंपेयर करबा x सहित तो x टा एठी केते अछि x रो कोएफिशिएंट होछि cos थीटा बाय लैम्डा. तो एबे आम देखिया कोन ना एठी केते बाहर थिला ना दिस इज योर x रो कोएफिशिएंट केते अछि ना cos थीटा प्राइम प्लस बीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा प्राइम इनटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर. नाउ यू कैन सी हियर if we will compare the coefficient of x, y and t we will get first expression that is एटा x पाई x रो कोएफिशिएंट को कंपेयर करले ती पाइले. अगेन y पाई जदी देखिबा देखो एठी हमरो y रो केते थिला जस्ट अ मिनिट एठी हमरो y पाई हमें जदी देखुजनी तो दिस इज योर y sin थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा. तो sin थीटा बाय लैम्डा इज योर y coefficient. Now if I will compare it here you can see here sin theta prime by lambda prime y ro coefficient. So you can see here this is sin theta by lambda equal to sin theta prime by lambda prime. Similarly if I will see for the t ro coefficient आमे जो देखिबा this is nu t minus nu t लिखा दिला. तो t रो coefficient केते minus nu. एबे जदि आमे देखिबा या से तो कंपेयर करियो जदि एक्सप्रेशन सहित. So this is your minus beta cos theta prime plus 1 divided by root over 1 minus beta square into nu prime achi. The coefficient of t prime will be coefficient of t is equal to this much. Now here I will write nu equal to beta cos theta prime plus 1 divided by root over of 1 minus beta square into nu prime. सब तो एक्सप्रेशन हमें कंपेयर कले and also c is equal to nu lambda and also that is equal to nu prime into lambda prime. Now एबे हमें कौन करबा ना जदि डिवाइड करबा इक्वेशन 5 को विथ द इक्वेशन 4 जदि हमें डिवाइड करछनी कोन होबो ना देखो इक्वेशन 5 divided by 4 you can see the lambda lambda get cancelled. Sin theta by cos theta will be equal to tan theta. You can see this is your tan theta and एठी हमें sin theta prime by lambda prime divided by this much करछनी. तो lambda get cancelled. This will be sin theta prime divided by cos theta prime plus beta and into 1 minus beta square root over. ठीक अछि आमे इक्वेशन 5 को डिवाइडेड बाय 4 करछनी. तो एति के हमर पाइले इक्वेशन नंबर 8 and this equation ए जो रिलेशन भाला tan theta equal to this much this is known as the aberration relation or the aberration equation which shows that if theta prime is the angle made by the wave with the x axis in the s prime frame then it makes an angle theta with the x axis that is with respect to the s prime. तो तामाने एबे हमें कहउछनी कोन ना जदी गोटे वेव आमे जते लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पढले कोन आमे खाली x कोऑर्डिनेट रे वेरिएशन with respect to s prime रे हला सपोज x and s prime frame रे सपोज द पोजीशन इज योर s prime. तो आमे रिलेशन बनउतले कोन s prime सहित x रो y सहित y prime z सहित z prime t prime सहित t prime सहित t रो रिलेशन आमे देखुले. एबे आमे कहउछनी कोन जदी सपोज सब एंगल रे वेव टा जाउछ
तो जदि सम एंगल थीटा रे जाउची इन एस फ्रेम देन विथ रेस्पेक्ट टू द एस प्राइम फ्रेम तो ये सपोज होची दैट एंगल इज योर थीटा प्राइम देन वी आर एस्टैब्लिशिंग एन रिलेशन फॉर द थीटा एंड थीटा प्राइम सो दिस इज रिलेशन बिटवीन थीटा एंड थीटा प्राइम जदि से गोटे वेवटा सम एंगल थीटा रे जाउची so for that angle we are establishing an relation between the s and s prime and that is between the theta and theta prime. So here the inverse equation for the aberration can be written as tan theta prime will be equal to simply theta को हमें theta prime रे चेंज करिवे और theta prime को theta रे चेंज करिके v को माइनस v मु कहि सारछि ऑलरेडी जदि विथ गोटे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जदि राइट हैंड साइड रे जाउची अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट रे अछि तो दिस डायरेक्शन इज सपोज कंसीडर टू बी पॉजिटिव सिमिलरली जदि आमे कहउछनी कोन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग एंड एठी द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एट रेस्ट ता पई आमे वेलोसिटी टा कोन नेगेटिव नउछन गोटे पॉजिटिव जोटा धरिबे अदर पई दैट विल बी नेगेटिव तो ये सब आमे फर्स्ट क्लास रु फर्स्ट पूरा डिराइव करी कि ऑलरेडी भल से पूरा डिस्कशन कर सारछन तो एबे फाइनली आमे पाइले कोन ना जेतु v टा माइनस v हे गेला एंड बीटा इक्वल टू v बाय c तो माइनस v बाय c हे गेला एटा हमर बीटा भी माइनस बीटा रे चेंज हो सो द फाइनल एक्सप्रेशन विल बी लाइक दिस फॉर द इनवर्स इक्वेशन जदि हमें लिखिबा नाउ वी विल सी फ्रॉम दिस रिलेशन वी विल सी द रिलेटिविस्टिक डॉपलर्स इफेक्ट तो हमें एबे कहउछनी कोन हमें एटी जो प्रूफ करेले इक्वेशन 7 जो कंपेयर करला परे सब कंपेयर कर साला परे हमें जो t रो कोएफिशिएंट t एती पाइतले न्यू इक्वल टू दिस मच nu equal to beta cos theta prime plus 1 divided by root over of 1 minus beta square into nu prime. So from this relation we can establish the relativistic Doppler's effect. So you can see here from that relation we can write nu prime will be equal to this much or we can write nu will be equal to जो nu डाइट रहिले एठी हमें nu prime into 1 minus beta square root over divided by 1 minus beta cos theta कर देले and again we can write since we know c equal to nu lambda and that is equal to nu prime lambda prime एठी जदि हमें पुट करछन तो nu वैल्यू होबो केते c by lambda and nu prime will be equal to c prime divide or this is your c exactly c divided by lambda prime and into 1 minus beta square root over divided by 1 minus beta cos theta light velocity c get cancel so simply we can write lambda will be equal to lambda this side asle so lambda prime into 1 minus beta cos theta divided by root over of 1 minus beta square एती हमें लिख पारे एटा होची कोन ना वेवलेंथ रो एक्सप्रेशन ठीक अछि तो हमें फ्रीक्वेंसी रो रिलेशन लिख पारे वेवलेंथ रो रिलेशन लिख पारे मु धीरे धीरे कहबी माने यार एप्लीकेशन टा कोन हमें कोठी जानिबे ए जो वेवलेंथ ए फ्रीक्वेंसी रो रिलेशन हमें देखौ जने एस फ्रेम एंड एस प्राइम फ्रेम हमें कहबा एटा लास्ट रे तो नेक्स्ट होची कोन ना लॉन्गिट्यूडिनल डॉपलर्स इफेक्ट तो सपोज थीटा इक्वल टू 0 अछि ठीक अछि थीटा इक्वल टू 0 माने आमे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस धरो एस फ्रेम रे कंसीडर करछने तो हमर वेवटा ए डायरेक्शन में जाउची दैट इज इन द डायरेक्शन एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जदी जाउची दैट इज cos 0 will be equal to 1 so we can write nu prime एठी हमें जो बाहर तिला हमर nu equal to nu prime into 1 minus beta square divided by beta cos theta जाय रे cos 0 is your 1 so divided by 1 minus beta okay again एठी हमर 1 minus beta square root over means a square minus b square form रे अछि a minus b into a plus b so 1 minus beta into 1 plus beta root over and this whole divided by 1 minus beta एठी हमर कोन 1 minus beta टा को हमें कोन लिख परिया root over of 1 minus beta into 1 minus beta root over root a into root a ना तो गोटे root over 1 minus beta गोटे root over 1 minus beta get cancel so this will be 1 plus beta divided by 1 minus beta root over into nu prime or this beta can also be written as 1 plus v by c so this beta जगह में v by c रखि देले again if I will solve this will be c plus v divided by c minus v divided by c get cancel so that after we will get nu will be equal to nu prime into c plus v divided by c minus v whole root over again if I will write the relation for the wavelength nu जगह भी हमें कौन करता है c equal to हमारा nu lambda तो nu जगह c by lambda तो again c by lambda c prime by c by lambda prime put कला परे will get देखो nu रो वैल्यू जहा हो lambda टा कौन simply तारो reciprocal टा हो यानी c get cancel so lambda will be equal to lambda prime एटी कौन है जो c minus v divided by c plus v okay now the suppose theta equal to pi तो थीटा रो डिफरेंट वैल्यू रे हमें कैलकुलेट कर परिए तो थीटा टा देखो लॉन्गिट्यूडिनल माने कौन थीटा टा 0 होइतिबो नले पाए हेतिबो
दिस एंगल इज एटा हूँ 0 ए टोटालटा हूँ आमर पाए 180 डिग्री सो नाउ जदि थीटाटा आमर पाए है सो इन दैट केस ये जो आमर न्यू रो रिलेशन थिला that will be nu prime into 1 minus beta square root over divided by 1 plus beta जो कहना cos pi टा हो चुके minus 1 so that will be 1 plus beta okay simply again ताको जदि solve करें 1 minus beta square को 1 minus beta into 1 plus beta root over तो गोटे 1 plus beta root over कटि गला एटा गोटे root over 1 plus beta रहला so this nu will be equal to nu prime into 1 minus beta divided by 1 plus beta root over न्यू जगह सो एबे बीटा जगह बी बाई सी पुट करदे तो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट न्यू विल बी इक्वल टू न्यू प्राइम इनटू सी माइनस वी डिवाइडेड बाय सी प्लस वी बीटा जगह सिंपली वैल्यू पुट करी जेमती जस्ट प्रीवियसली कले तो से भाई आम पुट करके आम ये रिलेशनटा पाइबा एंड सिमिलरली जदि मु वेवलेंथ लैम्बडा पाई करछि जस्ट द रेसिप्रोकल आई हैव टू टेक तो लैम्बडा विल बी इक्वल टू लैम्बडा प्राइम इनटू सी प्लस वी डिवाइडेड बाय सी माइनस वी रूट ओवर ओके. Now here you will see the transverse Doppler's effect. So for the transverse Doppler's effect we will let theta will be pi by 2. ठीक है theta टा 90 डिग्री जेतेबेले अछि that is known as theta टा pi by 2 होछि transverse Doppler effect. तो theta टा जेतेबेले 90 डिग्री cos 90 is your 0. So this will be nu prime into 1 minus beta square root over. So this will be a term टा हमरो 0 हो गेले this will be divided by 1 only. So nu will be equal to nu prime into 1 minus beta square root over. So in the relativistic Doppler's effect there is a change in the frequency. तो आमे जेतेबेले देखुचंदी ले relativistic Doppler's effect अछि सब केस रे whether longitudinal हो कि transverse Doppler's effect हो तो each and every case रे you can see here there will be a change in the frequency. S frame रे जहाँ देखिवो S prime frame रे तो frequency रे change हो and also you can say wavelength रे भी change हो. Now we will see in case of the non-relativistic Doppler's effect. तो नॉन रिलेटिविस्टिक डॉपलर्स इफेक्ट रे हमर कोन ना v इज वेरी वेरी लेस देन c और वी कैन राइट v स्क्वायर विल बी वेरी वेरी लेस देन c स्क्वायर जदि हमें बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देबा सो वी कैन राइट v स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन c स्क्वायर और v स्क्वायर बाय c स्क्वायर विल बी वेरी लेस देन 1 और नाउ वी कैन राइट 1 minus v स्क्वायर बाय c स्क्वायर विल बी रूट ओवर विल बी नियरली इक्वल टू 1 ओके. सो नाउ दिस इक्वेशन न्यू विल बी इक्वल आमे कौन लिखुले न्यू रो वैल्यूटा होछि केते न्यू प्राइम इनटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर रूट ओवर डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा cos थीटा जदि हमर 1 माइनस बीटा होछि कोन v बाय c जदि 1 माइनस बीटा स्क्वायर वैल्यूटा 1 हे गेला तो आमे लिखि परिए कोन न्यू विल बी इक्वल टू न्यू प्राइम डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा cos थीटा ओके और दिस आल्सो कैन बी रिटन एज न्यू प्राइम इनटू 1 माइनस बीटा cos थीटा पावर -1 ओके. जदि आपको हमें बाइनोमियली एक्सपांड करिबा सो दिस विल बी पावर विल गेट मल्टीप्लाइड हियर दिस विल बी 1 plus beta cos theta higher order term if we will neglect so we will get nu will be equal to nu prime into 1 plus beta cos theta or we can write the lambda prime equal to lambda into 1 plus beta cos theta. Now we will see when the value theta will be equal to 0 when theta equal to 0 देखो एठी मु कोन कोछि ना तार एप्लीकेशन कहि दोछि आम जो धर सपोज ये गोटे ट्रेन अच्छी व्हाट आर द पॉसिबल केसेस मु कहि दोछि एठी हमर ट्रेन अच्छी ट्रेन जाउछि ठीक अछि एठी मोर गोटे ऑब्जर्वर ठिया अछि एंड ट्रेन इज माय सोर्स व्हाट आर द कंडीशन कैन बी अप्लाइड एंड दिस इज माय ऑब्जर्वर हियर दिस इज योर ऑब्जर्वर. तो एबे हमें कहउछि कोन ना सोर्स आ ऑब्जर्वर सोर्स टा कोन करछि ना ऑब्जर्वर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर जाई पारे और हमें कहबा कोन ना ऑब्जर्वर टुवर्ड्स द सोर्स जाई पारे तो ए केस रे हमर कोन होछि ना थीटा टा हमर 0 डिग्री होछि सोर्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर मूव करू और ऑब्जर्वर टुवर्ड्स द सोर्स मूव करू दिटा द सेम दैट इज थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री. द नेक्स्ट केस कोन हो ना सोर्स टा मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर जदि एठी ठिया जे सोर्स टा ऑब्जर्वर रु दूर हेकि जाउथो अदरवाइज कोन कहबी ना सोर्स टा धर रेस्ट रे अछि ऑब्जर्वर कोन करथो ना ताटू दूर हेकि जाउथो तो इन दैट केस हमर थीटा टा कोन हे जिवो ना पाई हे जिवो ओके. एंड द नेक्स्ट मु कहूँ कौन ना जदि सोर्स जदि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाऊ ऑब्जर्वर तार ये रेस्ट रे अच्छी ओके सोर्स कौन करथो ना तार परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाऊ अदरवाइज सोर्स रेस्ट रे थिबो ऑब्जर्वर तार परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाऊ और दैट इज योर पाई बाय 2 थीटा टा हमर होची कोन ना पाई बाय 2 देन न्यू और द फ्रीक्वेंसी रे कौन चेंजेस सब आमे देखिबा ओके. तो नॉर्मल गोटे जिनस कौन जदि गोटे ट्रेन अच्छी ट्रेन व्हिसल मारुची
तो ऑब्जर्वर जदि ठिया है तो जिते टुवार्ड्स जिते पाखक पाखक जीव आमको कौन हुए ना धीरे धीरे शब्दटा जोर से शुभे ओके साउंडटा जिते पाखक आसो ऑब्जर्वर सोर्स जिते निज पाखक आसवे साउंडटा अधिक शुभ्य जिते दूर को जी वेदर सोर्स मुव करके जाओ अदरवाइज ऑब्जर्वर मुव माने इट इज मुविंग अवे जिते सोर्स रु दूरे की जीव तो से कौन धीरे धीरे साउंडटा कमी कमी जीव एंड ऑल्सो आम देखा कौन ना परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन हम आम देखा ओके सो नाउ हियर वी विल सी when theta equal to 0 degree that is your I mean non relativistic Doppler effect देखुछन जेतले v is very less than c light velocity कथा एबे हमें कंपेयर करनांती light velocity कथा हमर relativistic Doppler effect रे हमें कहि देले तो जेतले v is comparable with the c but here the v is very less than c in that case मु सेति पे ट्रेन रो एग्जांपल टा देली देखो थीटा टा जदी हमर 0 डिग्री अछि that is the source is moving towards the observer or the observer is moving towards the source दीटा भीतर जेकोसी केस हो पारे moving towards the source or the observer तो थीटा मोर 0 हेले cos 0 is your 1 तो cos 0 1 means nu will be equal to nu prime into 1 plus beta or 1 plus v by c or after solving this we will get nu equal to nu रे लिखे भी जदी c plus v by c into nu prime okay and similarly theta टा जदी मो पाए पकेबी if theta equal to pi that is the source is moving away from the observer or the observer is moving away from the source तो theta जितले पाए cos theta will be -1 so this will be nu prime into 1 minus beta or we can write nu equal to nu prime into 1 minus v by c or that will be c minus v by c into nu prime तो यहाँ हूँ कौन ना जो मुविंग अवे फ्रॉम द सोर्स देख टुवर्ड्स द सोर्स हेले c प्लस v by c थिला अवे हेले c माइनस v by c हिज ओके now the next is theta टा जिते हमर pi by 2 90 डिग्री रे जिते थिबो cos 90 is your 0 तो हमर जो रिलेशन थिला हमें कोन लिखुतले nu इक्वल टू nu प्राइम इनटू 1 प्लस बीटा cos थीटा तो जदि मोर थीटा टा 0 हे गेला दिस बीटा cos थीटा टर्म गोस टू 0 so nu will be equal to nu prime so there is no change in the frequency which is not seen in the relativistic case तो आमे रिलेटिविस्टिक रो को गोटे भी केस पाइले नहीं जेते बेले दीटा को फ्रेम ऑफ रेफरेंस रे दीटा को फ्रीक्वेंसी सेम होबो बट एठी हमें देखु छी कोन ना जदी सोर्स एंड द ऑब्जर्वर सोर्स हो किबा ऑब्जर्वर हो एनी ऑफ देम जदी कोन करची ना परपेंडिकुलर डायरेक्शन जाउची देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ तो सेमाना कोन माने फ्रीक्वेंसी रे कोनोसी चेंज होबोनी तो एटा नॉन रिलेटिविस्टिकली ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट यू कैन से so this is all about your Doppler effect that is the relativistic Doppler effect and the non-relativistic Doppler effect. If you have any doubt can ask me in the comment section. Thank you all.